Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the our first ever starting of CSIR UGC NET Earth Science for the Junior Research Fellowship exam. Okay, here we will discuss in this lecture about the syllabus and the strategy about the Earth Science JRF. Okay, so I request you to subscribe our channel and contact us as you know for the latest study material. Okay, let's begin. So in the CSIR UGC NET for Junior Research Fellowship and Lectureship, we will be studying about the earth, atmosphere and ocean and planetary sciences. Okay, so in the earth science topic you will learn about the different kind of theories of the formation of the earth as well as the different kinds of interactions of the earth with their spheres. Okay, as well as what interior of earth. Okay, you should also learn interior of earth inside it and the evolution of earth, how the earth is being evolved throughout the history of the our earth. Okay, and the atmospheric science, what we will learn in the atmospheric science, the gaseous sphere of the earth, we will learn about the different kinds of interactions of the gases as well as the different phenomena that is leading to the our climate change, as well as you will learn about the different kinds of circulations that is present in the atmosphere. Okay, likewise in the oceanic science you will learn about different kind of different kind of interactions of currents. Okay, as well as the biological productivity properties of the oceans during the climate change. These are the things you will learn in the oceanic sciences. Okay, in the planetary sciences it is very important to learn about the extraterrestrial things like solar system. Okay, composition of solar system and which planet is moving in which direction. These are also the questions that is coming in the exam. Okay, now we will discuss in detail about each part. Okay, we will discuss in detail about each part. So the first part, that is part B, we will discussing in this video about the part B. So in the first part, as we know that syllabus is telling about the earth and the solar system. So earth as well as solar systems are included in this. The first is मिल्की वे. ठीक है भाई, मिल्की वे आकाश गंगा के डेफिनेशन और उसके जो हमारे उसके साथ जो इंटरेक्शंस होते हैं और कब फॉर्मेशन हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना. ठीक है, इसमें मिल्की वे में. ठीक है, फिर आता है आपका सोलर सिस्टम के बारे में जानना. ठीक है, सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन, उसकी थ्योरीज किस तरीके से बने हैं वो. ठीक है, बात करें तो फिर आती है आपकी मॉडर्न थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ. ठीक है, मॉडर्न थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ. ठीक है, एंड अदर प्लेनेटरी बॉडीज. ओके, अदर प्लेनेटरी बॉडीज. नाउ अगेन अर्थ ऑर्बिटल्स पैरामीटर्स की बात करें तो हमारी केपलर्स लॉ की बात करते हैं सबसे पहले, केपलरिस लॉ की. ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी आएगा जिसमें कि आपको इवोल्यूशंस के बारे में जानना है कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ है. ठीक है, स्पेस एंड टाइम स्केल में आपके सॉलिड अर्थ में और एटमॉस्फेयर में ओशंस के जो इंटरेक्शंस है, जैसे कि मैंने बोला इंटरेक्शंस के बारे में जानना है. ठीक है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड देयर एप्लीकेशंस. ठीक है, जैसे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होता है. ठीक है, पैलियो क्लाइमेटिक. ठीक है, पैलियो क्लाइमेटिक, पैलियो क्लाइमेटिक, पैलियो क्लाइमेट. ठीक है, पैलियो क्लाइमेट के बारे में जानने के लिए काम आता है. तो आपको पैलियो क्लाइमेट के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में पढ़ना होगा. ठीक है, पैलियो क्लाइमेट के बारे में जानने के लिए. ठीक है, फिर आता है मीटियोराइट्स का केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, मीटियोराइट्स के बारे में जानना है, जैसे कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेटरी साइंस का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, प्राइमरी डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ, जैसे कि डिवीजन हो रखा है अर्थ का दो स्पीयर्स में, मैकेनिकल और केमिकल. ठीक है, आपको दोनों याद रखना है. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिग्राफी. ठीक है, स्ट्रैटिग्राफी किस तरीके से चलती है. स्ट्रैटिग्राफी की अगर बात करें तो हमारा एक रॉक का लेयर है. ठीक है, हर एक रॉक का लेयर एक अलग अलग टाइम में फॉर्मेशन हुआ होगा. ठीक है, तो उनके जो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन में डिफरेंस होगा. ठीक है, तो उस चीज को हम स्ट्रैटिग्राफी बोलते हैं. ठीक है, कहाँ का रॉक फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, दैट इज स्ट्रैटिग्राफी. ठीक है, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ थिंग. ठीक है, फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट. नेचुरल ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स, फॉसिल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ना है. अर्थ की ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है. आइसोस्टेसी के बारे में पढ़ना है. ठीक है, दिस आर सम इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर द यूनिट 1 of the part B. Okay,
Now unit second of the part B. Okay, let us discuss about the unit 2. Okay, तो unit 2 में बात करते हैं तो gross composition, physical properties of important minerals and rocks. ठीक है, minerals and rocks के बारे में जानना है, ठीक है, क्योंकि वो अर्थ के क्या होते हैं, अर्थ के पार्ट होते हैं, कौन, मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है, रॉक्स जिसपे आप खड़े हो रहे हो, चल रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, ठीक है, वो रॉक से ही बना हुआ है, ठीक है, आपके घर वगैरह सब चीज जो है वो रॉक से बना हुआ है। मिनरल्स भी क्या होते हैं, मिनरल्स आपको जो एलिमेंट्स होते हैं आपके अर्थ में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडिंग करते हैं, तो वो सारे के सारे जो चीजें हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज, प्रोसेस responsible for the mineral concentration, ठीक है, nature and distribution of the rock and minerals in the different units of the earth, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बारे में खासकर जानना है, ठीक है। फिजियोग्राफी ऑफ द अर्थ, ठीक है, फिजियोग्राफी, ठीक है, फिजियोग्राफी कैसा है, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ द अर्थ मटेरियल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सेडिमेंट, सेडिमेंटरी रॉक्स, एनर्जी बैलेंस एंड अर्थ सरफेस प्रोसेसेस, ठीक है, एनर्जी बैलेंस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक, एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस के बारे में आपको अच्छे से जानना है कि कितनी एनर्जी आ रही है, कितनी एनर्जी जा रही है, कौन सी एनर्जी आ रही है, कौन सी स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी वापस आ रही है, ठीक है, इसके बारे में जानना है। तो फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ द रिवर बेसिन इन द इंडिया, दिस इज द व्हाट second unit's topic. Okay, we will discussing all these things in the coming classes. Okay, the next thing you will learn about the interior of earth, as I already told. तो interior of अर्थ के जानने के लिए सबसे पहले आपको उसकी सेस्मोलॉजी जाननी होगी, क्योंकि सेस्मिक वेव्स के आधार पर ही हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ का डेफिनेशन हुआ है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आता है, ठीक है, फिजियोकेमिकल, सेस्मिक, प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ इंटीरियर, जैसे कि हमको इसको पढ़ना है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना है, ठीक है। बिहेवियर ऑफ रॉक अंडर स्ट्रेस के बारे में हम जानेंगे। फोल्ड्स एंड जॉइंट्स एंड फॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक है। फिर आता है आपका अर्थक्वेक एंड देयर कॉजेस एंड मेजरमेंट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरप्लेट एंड इंट्राप्लेट सेस्मिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पैलियोमैग्नेटिज्म भी स्टडी करेंगे। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट में काम आता है। साथ ही साथ आपका प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो यूनिट 3 इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। यूनिट 4 की बात करें, ओशन एटमॉस्फेयर, दिस इज द फेवरेट वन, this will be our favorite one, okay, because it is covering already all the topics that is very very relevant to our what CSIR science net, okay. So hypsographic of the continent, ठीक है, continental shelf, slope and rise and abyssal plain, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ, जैसे कि ये ओशन है, ओशन में कहाँ कहाँ कौन सी चीज लाई कर रही है, ठीक है, अलग अलग लेवल पे इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सी वाटर्स पे पढ़ेंगे, देयर स्पेशल वेरिएशंस पे पढ़ेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस टाइम ऑफ एलिमेंट्स और इन द सी वाटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओशनिक करेंट्स, वेव्स, टाइड्स, इंपोर्टेंट करंट सिस्टम, थर्मोअलाइन सर्कुलेशंस एंड ओशन कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ओशनिक करंट्स के बाद आ गई है तो ओशनिक करंट्स के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिर मेजर वाटर मासेस, ठीक है, अर्थ के जो मेजर ओशंस हैं उसमें वाटर मासेस की डेंसिटी एंड आपकी अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होती है बॉडीज की, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशंस पे चलेंगे, जहां पे हम उनके फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन्स एंड डिफरेंट स्पीसीज के बारे में इसकी स्टडी की जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा आपका ओशन वाला पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं एटमॉस्फेयर वाली पार्ट पे। तो एटमॉस्फेरिक पार्ट में क्या आता है, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस, ठीक है। ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट चेंजेस होते रह रहे हैं, तो टर्बुलेंस तो होगा ही, अर्थ का इंटरेक्शंस जो होगा गैसेस का वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें कि स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑल्दो वी हैव कवर्ड दिस लेक्चर इन द एनवायरमेंटल साइंस टॉपिक, बट अगेन वी विल स्टडी इट इन हियर, दैट इज स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। लैब स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, स्केल हाइट अगेन वी विल स्टडी, जियो पोटेंशियल हाइट वी विल स्टडी, ग्रीन हाउस गैसेस वी विल स्टडी, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्लाउड फॉर्मेशंस एंड प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, एयर सी इंटरेक्शंस ऑन द डिफरेंट स्पेस एंड टाइम स्केल, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंसोलेशन एंड हीट बजट्स वी विल आल्सो स्टडी, ओके, इंसोलेशन एंड हीट बजट के बारे में पढ़ेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। फिर कपल्ड ओशन एटमॉस्फेरिक फेनोमेना, दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। एल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन, एनसो एंड जनरल वेदर सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। मानसून सिस्टम, साइक्लोन एंड जेट स्ट्रीम, ठीक है। जेट स्ट्रीम, मानसून सिस्टम, साइक्लोन, ये दीज आर वेरी इंपोर्टेंट अलोंग विद द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ओके। फिर आपका प्रेसिपिटेशन मैकेनिज्म एंड पैटर्न ओवर द इंडिया, इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। मराइन एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस भी एक पार्ट है जो कि अभी करंट टॉपिक्स में चल रहा है, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। फिर आपका ओजोन डिप्लीशन पे चलते हैं, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन तो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उस पे बार-बार क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो विल स्टडी ओजोन डिप्लीशन आल्सो, ओके, इन दिस आवर लेक्चर सीरीज, ओके।
The last topic is also very important, relevant to environmental earth science point of view, as we are studying environmental science mostly in our previous classes. So we will dealing with this also. And the properties of water will be study, hydrological cycle we will study, water resource and management techniques we will study, energy resources, uses, degradation, alternatives and management, ecological and biological diversity we will study, impact of use of energy and land on the environment we will also study this, exploitation and conservation of minerals. These are some important topics we will study in the exploration geology of the minerals as well as the other natural resources and natural hazards. We'll study these things. Okay. तो पार्ट बी की जो स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है, पार्ट बी में स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी, 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, विल गेट 50 क्वेश्चंस बट वी हैव टू अटेंड 35 ओनली, ओके, 35 ओनली अटेंड करना है। तो आपको फोकस करना है उन टॉपिक्स पे जो रिपीटेडली कम करते हैं एग्जाम में, ठीक है, रिपीटेडली कमिंग टॉपिक्स विल बी फोकस्ड मोस्टली इन द एग्जाम. Okay, we will covering the selected topics that are very important to relevant to part B also, because we will focusing on the what previous year questions mainly. Okay, according to that we will study. ठीक है, सेफ अटेम्प्ट जो होता है यहाँ पे 25 होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप अगर अटेंड कर लेंगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पार्ट बी की जो नेगेटिव है दैट इज 0.5 नेगेटिव है, और आपका प्लस कितना है, प्लस की बात करें तो, ठीक है, यहाँ पे तो 0.5 है, कहाँ पे आपका नेगेटिव 0.5 है, लेकिन प्लस कितना है 2 मार्क्स, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड ना करें, आप सटीक क्वेश्चन अटेंड करें, बार बार बता रहे हैं सटीक क्वेश्चन अटेंड करें, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट ही रहेगा, इजी भी रहेगा, ठीक है, मॉडरेट टू इजी रहेगा, तो ये आपका पार्ट बी का स्ट्रेटेजी रहेगा, ठीक है। आई होप you have understand all the syllabus things, and now we will going to start our lecture series from the today itself. Okay, we will coming with the next lecture series. I hope this strategy will help you in the exam. Okay, we will discussing all these things in the coming classes. Have a nice day.